जो भी vad ane ka have hai uski apni rai hai jiski pushti press information news nahin karta dhanyavad. Yeah, we also intend to work with local self-governments, institutions such as development authorities, municipal corporations. We intend to reach everyone in short, and to make it awareness program along with the department. Okay, we also are working towards developing a comprehensive document or a manual comprising of best practices of existing guidelines, document standards, national as well as international, as a ready-to-use reference to all the architects and other building professionals to making universally accessible norms and their implementation. And of course, to jointly conduct workshops, seminars, training programs, as I have already said. Yeah, next please. We all know that this is very, very clear that it is a fundamental right. I mean, that is very clear, I think, to everyone in our room, so I'm not going to waste time on that. What we have done is that through our own assessment systems as such, at present we have actually identified about 30 architectural institutions across India, which has a different geographical positions, so that we are capable of proliferating in a very, very proper fashion in that. And presently we are training basically a senior faculty member along with a senior practicing architect and along with a sort of a middle level architect, so that these training centers would be operative basically from the 26th of January 2024, and that is the idea. So prior to that, as such, we have construction, audit checklist and reporting format. We intend to have a very, very standardized reporting format for this. The second phase of training, there is two modules, module 4 and module 5, that would be in the form of a design workshops, and that would be offline. That would be basically like a workshop. The experts would be taking them to the site visits, field visits, showing them the salient features of it, and So these are they are going to be taking them to there, and they are going to demonstrate that how to conduct these issues. So module 4 would be 2 days offline workshop plus viva voce. So that they have to face and they have to answer and they have to defend themselves. That again will be one greenfield project and one brownfield project, and the possibility of interim certificates would be there, but this is not a final certificate. Module 5 is a mock audit and retrofitting solution. So this is a very, very important module, whereupon this trained auditor is going to actually go to the field. की पहुंच दिव्यांगजनों की दक्षता के अनुरूप हो, उन्हें योजनाओं का लाभ सरल, सुगम और पारदर्शी तरीके से तो मिले ही, साथ ही इसमें एक रूपता भी हो। UDID कार्ड के माध्यम से यह किया जा रहा है सुनिश्चित। UDID यानी कि यूनिक आईडी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। UDID कार्ड के लिए दिव्यांगजनों को UDID पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करना आवश्यक है, जिसके बाद संबंधित मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांगजनों का आकलन करके UD कार्ड प्रदान किया जाता है। साथ ही वे अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक भी कर सकते हैं। यही नहीं, वे दिव्यांगता प्रमाण पत्र UDID कार्ड के वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये किया गया जो कार्य है, डिफरेंट हमारे केस लॉज को हम लोगों के लिए लेके आए हैं, वो एक फ्यूचर में मुझे लगता है कि एक माइलस्टोन होंगे। अगला कदम हमने रखा हुआ है कि जितने भी हमारे स्टेट कमिश्नर्स के डिसीजंस हैं मिसलेनियस स्टेट्स के, उनको भी कंपाइल करके हम आम जनता के लिए, दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध कराएं। ये कार्य विधि संस्था को दिया हुआ है, वो लोग कर रहे हैं। और इस कार्य के लिए मैं माननीय मैडम मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस किताब को आप जनता को समर्पित करें। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक जी, आदरणीय सचिव महोदय,
विभाग के मेरे सहयोगी अधिकारी एवं कर्मचारीगण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सिप्डा योजना के तहत दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, इसका मतलब नेशनल एक्शन प्लान, लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को रोजगार से जुड़े कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सके तथा भारत के अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जुड़ सके। यह योजना 2015 में एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू की गई थी और भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सामान्य मानदंडों के अनुसार लागू की गई है। राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण विभिन्न सरकारी और गैर सकते हैं। ट्रेनिंग से संबंधित संपूर्ण जानकारी जैसे कि ट्रेनर की योग्यता एवं अपने बैचमेट के बारे में या फिर रोजगार संबंधित और अपने अधिकारों के बारे में सारी जानकारियां उपलब्ध रहेगी। There is a small video after which I will come back. आजादी के अमृत काल में भारत के विकास में सभी की भागीदारी हो, सबका प्रयास हो, इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे दिव्यांग साथी, उनको कदम कदम पर मुश्किलें उठानी पड़ती। हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हमारे दिव्यांग साथियों की दूसरों पर निर्भरता कम से कम हो। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय बोलने वाले में पहले ही बोल जाऊंगा तो इन्होंने मुझे आखिर में डाल दिया। एक तरीके से अच्छा है कि आई कैन सम अप थिंग्स। तो आज हमने 5 काफ़ी इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव्स का मंत्री महोदय ने उद्घाटन किया, लॉन्च किया उनको, और अगले 15 दिन में आपको जो अलग अलग विंग्स को मालूम है कि क्या काम चल रहा है। अगले 15 दिन में काफ़ी नए इनिशिएटिव्स और देखने को मिलेंगे। 17 तारीख को विश्वकर्मा डे है, माननीय प्रधानमंत्री जी का उस दिन जन्म दिवस भी होता है। उस दिन काफ़ी इनिशिएटिव्स हम लॉन्च करने वाले हैं। फिर 24 से 25 तारीख को एडिप के 74 या 75 कैंप्स होने वाले हैं पूरे देश भर में, और उसके साथ भी कई इनिशिएटिव्स लॉन्च होंगे। बीच में 23 तारीख